Okay, so now we'll be starting the webinar. So firstly, I would like to welcome everybody who is attending this webinar. And we believe that this investor webinar series on options would make you more intelligent on this new and enhanced feature of the derivative market, which is an option trading instrument. Although option is not new to the Indian traders, but still what we feel, either the traders don't know how to strategically use options and make money from that, or some traders, despite trading for many years, they don't know what exactly option is. So this uh, webinar would not only tell you what option is, but it will try to simplify options into very simple thing. So we'll be starting the webinar. Okay, so this is the basic index of what we'll be covering. So we'll first be telling you what an option is in a very simple terms. So you must have heard what an option is in books. You must have Googled what an option is. But here what I'll be trying to do is I'll be showing you what an option is in a very simple terms. And what is call and put option, how to buy and sell an option, return on investment, and some advantages and disadvantages on options. Now firstly, many of you who are hearing this webinar, who are attending this webinar, might be wondering what an option is. Okay, we have heard 10,000 times from our brokers. We have heard 10 different times from our friends. We have heard that on television, but still we don't know what an option is. So an option is a hybrid contract or an hybrid instrument made purely for the traders, and this gives you multiple options to trade. I mean, as the name suggests, it gives the buyer the option and reduces the risk and investment requirement for the trader. So it gives you more flexibility. Now in a future contract, you only have one particular contract and you have only one particular price. You can either long or you can short. What's a Nifty trading at 5900 and I want to bet on 6100. So using futures, exactly I cannot do it. I mean, I can do it by taking a long future, but exactly I cannot do this particular thing by, in the future market. I can do a long future, but in option, you can exactly trade on a 6100 call. You can place your bet. You would be knowing from the day one that, okay, this is the maximum loss which I will be making. Now, today in the Indian markets, or with a retail or with a typical retail investor, every investor simply jumps into the market. And I'm confident most of you who trade in the derivative markets don't even think for a single time that, what exactly should I do with this particular trade. They simply jump on the option. So jump on the trade. You don't know what your maximum loss would be or what your maximum profit would be. You simply go out and buy that particular trade. So this is the first step where you are putting yourself into a dump. I mean, if you don't know what this particular trade stands for, if you don't know what is the risk return parity of this particular trade, how the hell will you earn in that particular trade? And then every trader comes out saying that the market is bad. I mean, the market is good and bad both. It is you who have to take a particular market. Let's say, for an example, let's say I talk about a drug or a medicine. Medicine cures you. Everybody on this planet knows this. But if you don't know how to take a particular medicine, you cannot blame that on that particular medicine, that this medicine is not working or there is a side effect of that particular medicine. So the point is that you should know how to use that particular instrument. In India, it started in June 2011 by National Stock Exchange, and currently Bombay Stock Exchange is also working very aggressively on their derivative market. They have done many incentive scheme. One recent scheme was LEAPS, which is Liquidity Enhancement Program, where they have passed on incentive for trading.
So they incentivized every trader for trading in the in that derivative segment, the BSE, and that is going doing good. The last time I checked, it was somewhere around 70-80,000 crore a day, so which is almost touching half the volume NSE does on its derivative counter. So BSE has also started the derivative, and they have very fantastic kind of different kind of options. They have 15-day expiry option. They have a physical delivery in the option. So BSE is also into the option market and derivative market. So now next slide, which will show you what exactly that particular option or option contract stands for. It gives the right but not the obligation for the option buyer. In simple terms, the obligation to exercise an option lies with the buyer. But currently, as there are all the options in India are European options, so automatically all the options get exercised at the end of the expiry. It has the same contract cycle, same underlying assets. The same shares, same set of shares which are there in the future contract are there in the option segment. Expiry is same 3-month expiry. So this is nothing new, this is nothing alien for a future trader. Limited loss, unlimited profit to the option buyer. Now, this is the fantastic characteristic what an option offers you. I've seen traders who put 10 lakh, 20 lakh just by simple rumor on a future market. Now, why not to trade in options and hedge your position? You can easily hedge your position using only options or using future and options both, rather than buying a naked future position. So, and this is the reason why 99% of the traders, retail traders in India are in loss in the future market. And I can say this 99% figure because I have seen traders who have lost everything in the future market. Everything means everything. Their home, their property, everything they have lost in the future market. Now this is the beauty of the future market. If I am an intelligent trader and you are a fool trader, so I'll earn my living only by fooling you and making the benefits out of the mistake which you do. The market is a foolproof thing, but what wrong tactic you apply into the market makes you a fool. So you long a future, you don't have any sufficient margin to pay the MTM, and you go enter into the future contract. This is the foolish thing which you do. Why to trade in future? Has somebody told you? Is there in your Bhavishyavani that you should trade only in future market? So why to spoil your money into the trading in a contract which is a very risky contract? Now every contract has its pros and cons. I am not here to criticize future market because obviously my last webinar was on future market. But the point is, does that fits into your investment style? The answer is no. Not even a single retail trader, I believe, should trade in future market. And I am telling this with a huge lot of experience which I have seen traders dying. You may be making money in one contract, you may be making money in two contracts, but at the end of the day, client would lose money in future market if he does not know how to manage his risk. So the beautiful characteristic of an option is it has limited loss potential. The full premium amount has to be paid upfront, not like the future market where you have to pay 10%. But believe me, that 10% is 10 times more what you pay the full amount in the option market. So you pay 5,000, 6,000, 8,000 rupees for an option contract, which is the 100% amount. And the same future contract you pay 25 to 30,000 rupees per future contract for Nifty. Seller has to pay margin. Now the seller has a very different story when I talk about the future market. Only the intelligent traders in the market trade in the sell the options. The different strike prices available. You have a strike price in Nifty starting from, I guess, 3,500 or 3,000 up to 6,500 or 7,000. So you can trade on any particular strike price. Useful in all kind of market. Now a trader, he is bullish, buy call option, bearish, buy put option. Market is volatile, enter into a straddle. Market stable, short a straddle or strangle. So I mean, options
is the place where you can find answers for everything. And sadly, still only 10% of the retail traders participate in the Indian options market. So this is the scene which is there in the Indian option markets. Okay, so let us move onto the next slide. What is a call and what is a put? Call, when a trader is buying a call, he has the right to buy a share at a specified time and a specified date. Put, he has a right to sell. Now, to simplify things, if the market moves up, call would be benefiting you. If the market goes down, put will be benefiting you. The break-even point for call is, let's say I bought a 5900 call at 50 rupees. So my break-even would be 5900 plus 50, which is 5950 would be my break-even point. And for put, it will be strike price less premium. So let's say I bought a 1500 put at 50 rupees. So my BP would be 5850. Now you can see a very simple chart out here in the screen. On the screen, you all must be viewing my mouse moving. So this is a very simple chart which states if you are bullish on the market, you buy call. If you are bearish on the market, you buy put. It is as simple as this. Now as a beginner who's beginning, into the option trading, you only have to understand this simple thing. Take your small step into the option market. Try to trade in a staggered way. So let's say today you are bullish on market till 6100. Buy one lot of 5900 call, buy one lot of 6000, buy one lot of 6100 call. So instead of buying 3 call options at 5900, stagger your risk and stagger your profit. So when the option rises, what happens is, as the option rises, the in the money option, they lose the charm of the time value. So the propensity to rise of an in the money option is very less as compared to an out of the money option. Trading in option. Okay, so when you buy an option, you pay premium amount. When you sell an option, you pay margin money. Loss potential is limited in buying, and it is in selling it is unlimited. So let me tell you what is the difference between buying and selling an option. And I'll try to be very, very simple on that. Let's say a 5900 call option is trading at 100 rupees, just for an example. If I feel that I'm bullish on that particular option and I'm a new trader, I'll buy that 5900 call by paying 100 rupees margin. Let me also explain this in Hindi. 5900 का दिसंबर कॉल ऑप्शन चल रहा है 100 रुपए पे. मुझे लगता है बाजार यहां से तेज है. एक तरीका है मेरे पास कि मैं निफ्टी का फ्यूचर बाय करूं, एक तरीका है कि मैं निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय करूं. मैंने 100 रुपए पे किए, 50 का लॉट है, 100 इंटू 50, 5000 का मेरा इन्वेस्टमेंट है. मात्र 5000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में डेरिवेटिव में मैं खेल रहा हूं. ब्यूटी, यही ब्यूटी है ऑप्शन मार्केट की. अब मैं अगर किसी से बाय कर रहा हूं तो कोई सेल भी कर रहा है मार्केट में. तो मैं जब बाय कर रहा हूं एक ऑप्शन को, अगर ये ऑप्शन यहां से बढ़ता है, मार्केट बढ़ता है यहां से, तो मुझे प्रॉफिट होगा. मगर मार्केट अगर नहीं बढ़ता है तो मुझे लॉस सिर्फ 5000 का होगा, मैक्सिमम 5000 का लॉस होगा. क्या 5000 का लॉस मैं बियर कर सकता हूं? हाँ, मेरी कैपेबिलिटी है. मैं 2500 तक पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा. 50 रुपए पे 2500 का लॉस बियर कर सकता हूं मैं. 100 रुपए का ऑप्शन मैंने लिया, 50 रुपए में एग्जिट हो जाऊंगा अगर ये ऑप्शन लॉस में गया तो. दिस इज हाउ यू बाय एन ऑप्शन. अगर मैं एक ऑप्शन 5900 का सेल कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत जरूरी है. ऑप्शन बाइंग से ज्यादा जरूरी है ऑप्शन सेलिंग को समझना. भले आप ऑप्शन सेलिंग ना करें, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग होता क्या है. अगर मैं एक ऑप्शन सेल कर रहा हूं 100 रुपए पे, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि निफ्टी का 5900 का जो कॉल है, निफ्टी जो है 5900 के ऊपर नहीं जाएगा, और 100 रुपए की जो प्रीमियम है वो मुझे रिसीव हो गई है. बट यहां पे मेरा लॉस जो है अनलिमिटेड है. मार्केट 5900 के ऊपर चल सकता है और अनलिमिटेड चल सकता है. 59 से 6100, 62, 6500, 7000 तक भी जा सकता है. प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी नहीं है, बट थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी तो है.
एक्सचेंज मुझसे ये बोलता है ठीक है आपको सेल करना है, आप सेल कीजिए, आपको 5,000 रुपए आज मिल जाएंगे, बट चूंकि आपकी लॉस लायबिलिटी अनलिमिटेड है इसलिए आपको मार्जिन मनी भी पे करनी पड़ेगी। दिस इज एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। सो मैं मार्जिन मनी निफ्टी की जो है 25,000 के आसपास की अगर मार्जिन मनी मैं अज्यूम कर रहा हूं तो मुझे मार्जिन मनी मेरे ब्रोकर के पास रखनी पड़ेगी और प्रीमियम जो है वो मुझे क्रेडिट हो जाएगी। मैं तभी ये शर्त जीतूंगा जब मार्केट 5900 के नीचे रहेगा अगर मैंने सेल किया है ऑप्शन। तो अगर मार्केट 5900 के ऊपर रहा और मैंने 5900 का कॉल सेल किया है तो मैं ये शर्त हार जाऊंगा। मैं जितने रुपए से शर्त हारूंगा उतना मुझे पे करना पड़ेगा बायर को, और वही बायर का प्रॉफिट है। तो बायर का प्रॉफिट तब होता है जब मार्केट बढ़ता या घटता है ऑप्शन में, बट सेलर का प्रॉफिट जितना भी होना पहले दिन हो जाएगा। मुझे मालूम है 5,000 रुपए मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है जो प्रीमियम मुझे मिली और वो मुझे पहले दिन मिल गई। आई एम हैप्पी, बट आई डोंट हैव टू बी हैप्पी बिकॉज अभी तो कहानी अभी बाकी है। सो दैट वेज, सो आप जब एक ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो आपका लॉस अनलिमिटेड होता है। इफेक्ट ऑफ टाइम डिके, जैसे जैसे टाइम कम होते जाएगा, अगर मैं 1 तारीख को एक ऑप्शन सेल कर रहा हूं तो ऑप्शन की प्रीमियम सबसे ज्यादा रहेगी। अगर मैं 30 तारीख को एक्सपायरी है या 27 तारीख को एक्सपायरी है, मैं 27 तारीख को एक ऑप्शन सेल कर रहा हूं तो ऑप्शन की वैल्यू जो है वो सबसे कम रहे क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू नहीं है। टाइम वैल्यू सिंपल सा होता है जिसको हम बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। अगर मैं एक ऑप्शन सेल कर रहा हूं मतलब मैं एक रिस्क ले रहा हूं तो मैं उस रिस्क के लिए एक प्रीमियम लेता हूं। मान लीजिए एक्सपायरी में 30 दिन है तो 30 दिन में मुझे लगता है कि इतनी रिस्क हो सकती है, उसके लिए एक सेलर प्रीमियम चार्ज करता है। देयर इज अ लेजिटिमेट फॉर्मूला फॉर दैट, ब्लैक शोल्स फॉर्मूला। ऑप्शन कैलकुलेटर के थ्रू आपको पता चलता है कि ऑप्शन की रियल वैल्यू क्या है। सो दिस इज ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग। इंट्रिंसिक वैल्यू, बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं विच आई बिलीव जो ट्रेडर्स नए हैं उनको समझ में नहीं आएगी, एंड डोंट बॉदर टू ट्राई टू अंडरस्टैंड बिकॉज अल्टीमेटली आपको ये समझना है तेजी में कॉल खरीदना, मद्दी में पुट खरीदना। दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है रियल वैल्यू एक ऑप्शन की क्या है। सो एक ऑप्शन जितने रुपए से इन द मनी है वो कहलाती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। एक इन द मनी ऑप्शन की प्रीमियम प्राइस एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन से हमेशा ज्यादा रहती है क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है। टाइम वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज द अमाउंट पेड बाय अ बायर अपार्ट फ्रॉम द इंट्रिंसिक वैल्यू, ऑल्सो नोन एज रिस्क प्रीमियम। There is an example which is there on your screen. So example, Nifty spot is at 5900, 5800. निफ्टी का 5700 का जो कॉल है वो 150 रुपए में आपको मिल रहा है। इधर इंट्रिंसिक वैल्यू है 100 रुपए और टाइम वैल्यू है 50 रुपए। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे आई? मैंने 5700 का कॉल 5700 का कॉल बाय किया, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि बाजार जो है 5700 के ऊपर रहेगा। अभी निफ्टी कहां पे है? 5800। मैं क्या शर्त जीत रहा हूं? हाँ, मैंने जो शर्त ली है वो जीती हुई शर्त परचेज की है। तो जितने से शर्त मैं जीत रहा हूं उतना तो पैसा मुझे पे करना ही पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं कि आई एम बाइंग अ हाउस विच इज ऑलरेडी हैज अ रेंटल वैल्यू। तो अगर मैं कोई मकान खरीद रहा हूं जिसमें ऑलरेडी कोई किराएदार बैठा है तो वो जो बेनिफिट है वो उसकी वैल्यू में ऐड हो जाता है। सो दिस सेम वेज अगर मैं निफ्टी का एक ऑप्शन परचेज कर रहा हूं 5700 का विच इज 5700 का कॉल विच इज इन द मनी, तो जितने से इन द मनी है 100 रुपए से इन द मनी है वो इंट्रिंसिक वैल्यू वो मुझे पे करना है। और 50 रुपए जो मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं वो उस रिस्क के पे कर रहा हूं कि आने वाले समय में जब तक एक्सपायरी होगी मार्केट में इस ऑप्शन का प्राइस जो भी हो उसके लिए वो रिस्क प्रीमियम सेलर आपसे चार्ज कर रहा है, उसको लग रहा है 50 रुपए की रिस्क है। अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन वो ऑप्शन जो कभी भी एक्सरसाइज हो सकते थे बिफोर एक्सपायरी, ऑन और बिफोर। यूरोपियन स्टाइल जिनको आप एक्सपायरी पे ही एक्सरसाइज करते हैं। इंडिया में अभी सिर्फ यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन हैं। स्ट्राइक प्राइस हम ये बोल रहे हैं 5600 की कॉल, 5700 की कॉल, 5800, 5600, 5700, 5800, ये वो प्राइस है जिसपे मैं अपने कॉल ऑप्शन को स्ट्राइक कर रहा हूं। ये स्ट्राइक प्राइस है मेरे ऑप्शन की। मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन की, ऑप्शन का मनीनेस क्या है, कितना इन द मनी कितना आउट ऑफ द मनी है। ऑल्दो ये एक थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है तो ऑल द ट्रेडर्स विच आर न्यू टू द मार्केट दे कैन bother not to bother not to understand in deep। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट कॉल में स्पॉट माइनस स्ट्राइक, पुट में
व्हेन द स्पॉट इज लेस देन स्ट्राइक। तो इन द मनी मतलब ये होता है कि जितने इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, जितने से हम शेयर जीत रहे हैं। एट द मनी मतलब मैंने 5700 का कॉल लिया है, बाजार अभी भी 5700 पे है, तो मेरी ऑप्शन जो है एट द मनी है। आउट ऑफ द मनी मतलब बाजार अभी 5700 पे है और मैंने 5800 का कॉल ले लिया, तो बाजार अभी मेरी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाना बाकी है। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड जिसमें हम बता रहे हैं कि अगर एक ट्रेडर फ्यूचर में ट्रेड कर रहा है और अगर एक ट्रेडर ऑप्शन में ट्रेड कर रहा है तो क्या डिफरेंस है बेसिकली। वी हैव टेकन टू एग्जांपल्स, both the examples are of two different traders. There is a trader A and there is a trader B, both are bullish on Nifty which is currently trading at 5,000 rupees. तो ट्रेडर ए ने निफ्टी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया 25,000 रुपए की प्रीमियम मार्जिन मनी पे करके 10% ऑफ 5,000 इंटू 50। वही ट्रेडर बी है जिसने ऑप्शन सीखा हुआ है, ऑप्शन जानता है, उसको भी तेजी लग रही है, ट्रेडर ए को भी तेजी लग रही है। ट्रेडर बी ने इंटेलिजेंटली 5100 का कॉल लिया 100 रुपए की प्रीमियम पे करके। अब टोटल उसका इन्वेस्टमेंट हो गया यहाँ पे 5,000 रुपए, विच इज 100 इंटू 50, लॉट साइज इंटू दी प्रीमियम प्राइस ऑफ वन पर्टिकुलर ऑप्शन। तो अब अगर एक्सपायरी पे निफ्टी की एक्सपायरी होती है 5500 पे, तो निफ्टी एक्सपायर्स एट 5500 एट द एंड ऑफ द मंथ, so what will be the payoff of both the option trader? So let us see for the trader A, his investment was 25,000 rupees. ट्रेडर ने 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, जो उसका रिटर्न आया 5500 माइनस 5,000, 500 पॉइंट का डिफरेंस इंटू 50, 25,000 का उसका डिफरेंस आया, जो उसका प्रॉफिट आया, विच इज ओनली 100% ऑफ हिज रिटर्न ऑन कैपिटल। उसने 25,000 लगाए थे और 25,000 का उसको रिटर्न निकल के आया है। ट्रेडर बी ने 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया था एंड ही गेन्ड 15,000 रुपीज, विच इज 300 रुपीज फ्रॉम 5500 टू 5100 माइनस 100 रुपीज जो उसकी प्रीमियम थी, विच मेक्स इट 300% का रिटर्न ऑन कैपिटल। सो क्लियरली यू कैन सी द ट्रेडर विच इज ट्रेडिंग इन एन ऑप्शन, उसकी रिस्क बहुत कम है बट रिटर्न 3 गुना ज्यादा इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में। सो दिस इज द बेसिक रीजन वाई वी educate and why we try to tell everybody, motivate everybody to trade in the option contract. Return on investment in an option is much more than the return on investment in a future market. The risk is less. यहाँ पे 5,000 में मैं 5 अलग अलग ऑप्शन परचेज कर सकता था। यहाँ पे मैं चाहता 5100 का कॉल, 5200 का, 5300 का, 5400 का और 5500 का कॉल 5 अलग अलग 25,000 में परचेज कर सकता था। सो इंस्टेड ऑफ मी बाइंग अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वही 25,000 रुपए में 5 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर सकता हूं। सो वाई टू गो फॉर अ कॉल ऑप्शन। सिमिलरली आपको लग रहा है बाजार यहां से कमजोर है, बाय अ पुट ऑप्शन इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ पर्टिकुलर फ्यूचर ऑप्शन। आप एक पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए, 2-3 पुट ऑप्शन को आप एक सीक्वेंस में बाय कर लीजिए। सो दिस वे यू कैन ट्रेड इन दी ऑप्शन मार्केट। दिस इज द रीजन वाई वी टेल एवरीबडी, वाई वी सजेस्ट एवरीबडी, why we force everybody in fact to trade in the future market. The advocacy because of behind promoting the option market is the return on investment and the lower investment. Any trader, he is a trader, let's say एक ट्रेडर है जिसका इन्फोसिस में लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है, शेयर पड़े हैं 2 लाख 2.5 लाख रुपए, उसको हेज करना है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर सकता है एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आप पुट ले लीजिए। आप अपने उस इन्फोसिस के लिए इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं। एक तो ऑप्शन ये है आपने इन्फोसिस ले रखा है, आप नेकेड रख के उसको लेके चलिए, अगर बाजार गिरेगा, इन्फोसिस गिरेगा तो आपको लॉस है, बढ़ेगा तो प्रॉफिट है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है आपने इन्फोसिस ले रखा है 2-2.5 लाख रुपए के शेयर, आप एक पुट परचेज कर लीजिए, 5,000, 7,000, 8,000 का आपको इंश्योरेंस कॉस्ट है। अगर बाजार गिरा तो पुट कमा के दे जाएगा, बाजार बढ़ा तो इन्फोसिस तो आपके पास रखा ही हुआ है। तो क्या बुराई है आप ऑप्शंस ट्रेड करने में। एक रिटेल ट्रेडर अपने पूरे 10 साल का लॉस 2 महीने में निकाल सकता है अगर वो ऑप्शन में इंटेलिजेंटली ट्रेड करे। द पॉइंट इज ही मस्ट नो वेयर टू एंटर, वेयर टू एग्जिट एंड व्हाट टू बाय। एंड बिलीव मी, दिस इज नो रॉकेट साइंस। ऑप्शन ट्रेडिंग इज द सिंपलेस्ट थिंग in this financial market, believe me.
I'm not telling this because I know option and I'm giving a webinar on option, but believe me, आप एक बार option समझ लेंगे, trading करना चालू करेंगे, you'll love to trade in options every time. Some do's and don'ts in the option market. What you should do, what you should avoid. Trade only in liquid options. इंडिया में कुछ 160 170 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बट बहुत कम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, खास करके स्टॉक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिनमें कि आपको बाइंग एंड सेलिंग दोनों तरफ से मिल जाती है. बाइंग बायर भी मिल जाएगा, सेलिंग भी मिल जाएगी. बहुत कम ऐसे ऑप्शंस हैं. एज फार एज आई बिलीव ओनली 20-25 ऑप्शंस आर देयर जिसमें बहुत लिक्विड ट्रेडिंग होती है. उसके अलावा कई सारे शेयर्स जिनमें बहुत इलिक्विड ट्रेडिंग है. तो किसी भी इलिक्विड ऑप्शन मत एंटर कीजिए. जितना भी नॉलेज है आपको, जितना भी अच्छा इंटेंशन है आपका, आपको अगर सेलर नहीं मिलेगा तो आप स्क्वायर ऑफ कैसे करेंगे और प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे. क्लियरली अंडरस्टैंड द मार्जिन एंड पे ऑफ व्हाइल सेलिंग एन ऑप्शन. सेलिंग एन ऑप्शन वेरी डिफिकल्ट, वेरी रिस्की. आपको सेल करना है, करिए, नोबडी इज स्टॉपिंग यू टू सेल. बट एक रिटेल ट्रेडर को जब तक वो 100 ट्रेड बाइंग के ना कर ले, सेलिंग में मत जाइए. राइट दिस फॉर्मूला, ये मंत्रा आप मेरे से लिख लीजिए, सक्सेस मंत्रा. अगर आपके पास कोई पेन है, कॉपी है, एवरीबडी हु इज इनटू दिस वेबिनार, जब तक आप 100 ऑप्शन बाइंग के ट्रेड ना करें, आप ऑप्शन सेलिंग में मत जाए. टेक इट एज योर थंब रूल. you'll remember me when you'll make huge profit in selling. Believe me, I have seen traders हमारे वेबिनार में आते हैं, 2 दिन के सेमिनार में आते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, अरे सर ने हमको ऑप्शन पढ़ा दिया, 2 दिन में हम सीख गए. 10 साल से सोच रहे थे ऑप्शन क्या है, 2 दिन में हमको सर ने सिखा दिया. 2 ट्रेड लॉन्ग के किए, तीसरा शॉर्ट का किया, चौथे दिन फोन आ गया, सर क्या ऑप्शन सिखाया आपने, हम तो लॉस कर गए. देन आई कॉल एवरीबडी कि बॉस वो आप रजिस्टर निकालिए जिसमें मैंने आपको अपना एक सक्सेस मंत्रा लिखवाया था. सेलिंग करना बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है. अरे यार 6100 का कॉल है, मार दो उठा के, राइट कर दो ऑप्शन को, जेब में पैसा, कहीं नहीं जाना है. 40-50 हजार तो पड़े हैं अपने पास फ्री, स्टॉक्स रख देंगे कोलेटरल में. मगर इतना आसान नहीं है ऑप्शन सेल करके कमाना. एंड बिलीव मी, अगर आप ऑप्शन सेल करने की आर्ट समझ गए तो आप कभी ऑप्शन बाय करोगे भी नहीं. दिस इज लाइक अ नशा है ऑप्शंस का. अगर आप ऑप्शन में सही ट्रेडिंग करना सीख गए, आप यू विल नॉट इवन बॉदर टू लुक एट दी कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट. ओके, दैट विल बी लाइक अ यू नो पीनट्स फॉर यू. सो आप अगर ऑप्शन अच्छे से ट्रेड करना सीख गए, पैसा कमाना सीख गए, दे हैव मेड, गाइज हैव मेड ह्यूज मनी आउट ऑफ ऑप्शंस. बहुत पैसा कमाया लोगों ने ऑप्शन में. और ऑप्शन आपको दोनों तरफ का पैसा दे के जाएगा. हम कहीं सेमिनार्स में जाते हैं, वेबिनार्स में जाते हैं, लोग पूछते हैं साहब बाजार कहां जाएगा. मैं एक सवाल पूछता हूं, आप कितने साल से ये चीज पूछ रहे हैं साहब? 5 साल से, 10 साल से. आपने क्या कर लिया ये जान के? मैंने बता दिया आपको बाजार यहां जाएगा, यहां चला भी गया एग्जैक्ट लेवल टू लेवल. आपने क्या कर लिया? वही आप देख रहे हो बाजार को चलते हुए, वही हर चलते हुए आदमी से पूछ रहे हो सर बाजार कहां जाएगा, बाजार कहां जाएगा. पॉइंट इज कि आप इंप्लीमेंट कैसे करते हैं. ऑप्शंस में आप एक बार अगर ऑप्शन सीख गए, बाजार तेज हो, कमजोर हो, आपका महीने का रिटर्न आपको निकाल के मिलते जाएगा. आप 5 ट्रेड कीजिए, 10 ट्रेड कीजिए, दैट्स इट, दुकान बंद आपकी. टारगेट रखिए मेरे को लाख रुपए कमाना है महीने में ऑप्शन से, 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है मेरा. 10 ट्रेड में बताऊंगा आपको, 10 ट्रेड कीजिए, कहानी खत्म. उसके बाद आपको ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है मार्केट में. 1 महीना देखते रहिए. लालच ज्यादा भी नहीं करना. ये एक बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है. मेरे फर्स्ट वेबिनार में मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मार्केट की सबसे बड़ी जो चीज है वो है ट्रेडिंग से बचना. जिस ट्रेडर को ट्रेडिंग से बचना आ गया, वो ट्रेडर सफल है मार्केट में. आप स्क्रीन पे गए, आपने कसम खा ली है आपको ट्रेड नहीं करना, आपकी स्क्रीन इतनी प्रॉम्प्टिंग है और लाल नीला निशान देख करके हर आदमी का सौदा दब जाता है. आदमी रोक नहीं पाता अपने आप को लाल नीला निशान देख के. अरे यार ले लो सर, 1000 शेयर ले लो, 100 शेयर ले लो, शर्मा जी ले लो आप तो. और क्या हुआ? फिर वही ढाक के 3 पात, फिर वही लॉस में गए, फिर वही कसम खाते हुए गए 3:30 बजे डीलिंग रूम से. कसम है आप दोबारा ट्रेड किया, दूसरे दिन वही काम कर रहे हैं. सो दी पॉइंट इज, ट्रेडिंग से ज्यादा जरूरी है ट्रेडिंग की आदत से बचना. जिस आदमी ने अपने आप को ट्रेडिंग की आदत से बचा लिया, वो आदमी किंग है इस बाजार में. नॉलेज की जरूरत नहीं है, स्ट्रेटेजी की जरूरत आपको इतनी नहीं है. सब टीवी पे फ्री में मिलता है. ज्ञान की भरमार है टीवी पे. आप टीवी बंद करना चाहोगे, इतना ज्ञान है टीवी पे.
पॉइंट इज इम्प्लीमेंटेशन, नॉलेज एंड इम्प्लीमेंटेशन. सो आप इम्प्लीमेंट कितना अच्छे से करते हो वो बात है. दिस इज नॉट, ट्रेडिंग इज नॉट अ साइंस, ट्रेडिंग इज एन आर्ट. आप लोगों ने बहुत सुना होगा ट्रेडिंग इज साइंस, मैं भी कई बार ट्रेडिंग इज साइंस बोलता हूं, बट एक आर्ट जो होती है उसमें साइंस भी इंक्लूसिव है. एक कला जो है वो तभी आएगी जब आपको किसी एक हुनर की साइंस मालूम है. इफ यू नो द टिक्स एंड टिप्स एंड ट्रेड्स ऑफ द मार्केट, देन ओनली यू कैन बी एन आर्टिस्ट. एक कला है, मैं किसी को नहीं समझा सकता कि आपके लिए ये चीज सही है. मैं 10 में से 8 चीज आपके लिए बता सकता हूं, वो 2 चीज आपको खुद को डेवलप करनी पड़ेगी. एक बहुत अच्छी चीज मैंने कहीं सुनी थी कि ट्रेडिंग किसी को सिखाया नहीं जा सकता है पर सीखा जा सकता है. किसी को नहीं सिखा सकता कि ट्रेडिंग क्या है, बट आप सीख सकते हैं ट्रेडिंग क्या है. विचार कीजिएगा इसके क्या होता है ये. नेक्स्ट है ट्राई टू ट्रेड ओनली इन करंट मंथ ऑप्शंस. कोशिश कीजिए आप करंट मंथ ऑप्शंस में ट्रेड करें. हाँ, एक्सपायरी के 3-4 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले आप अपनी पोजीशन अगले महीने में ट्रेड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. ट्राई नेवर टू सेल अ नेकेड ऑप्शन. एक ऑप्शन विच इज नॉट कवर्ड. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय अ नेकेड ऑप्शन? निफ्टी का 6100 का कॉल उठा के सेल कर दिया मैंने. सिर्फ उसको सेल ना करो, आप एक 6200 का कॉल भी परचेज कर लो या 6300 का कॉल परचेज कर लो, या साथ में आपको एक फ्यूचर में ट्रेड कर लो कि अगर बाजार आपका उल्टा चला तो कम से कम कोई तो एक ट्रेड है जो कि आपको बचा देगा. ये एक स्ट्रैटेजी है जो कही जाती है. 99% HNIs FIIs जो इसमें ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में सेल करते हैं, वो कभी नेकेड ऑप्शन सेल नहीं करते. क्लियरली अंडरस्टैंड द ऑप्शन मैकेनिज्म बिफोर ट्रेडिंग. ट्राई टू डू योर फर्स्ट ट्रेड इन निफ्टी करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली. बहुत सारे ट्रेडर्स हैं यहाँ पे जो कि इस वेबिनार के बाद पंप्ड इन है, अरे यार अब तो वेबिनार अटेंड कर लिया, आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे. बट एक सजेशन है, निफ्टी से आप स्टार्ट कीजिए. आप अपना डेब्यू जो है, everybody wants to score a century on their debut. I also wish best of luck to you to score more than 10,000 times of century. But निफ्टी में आप try to trade only in निफ्टी जब आप अपना फर्स्ट ट्रेड करते हैं. So these were some do's and don'ts in the option trading. फायदे क्या हैं? बहुत हमने कहानियां कहीं, देखते हैं क्या फायदे हैं. बहुत इन्वेस्टमेंट कम चाहिए, 5,000 10,000 में ट्रेडर ट्रेड कर लेगा, छोटा निवेशक. आज NSE, सेबी, BSE, हर एक्सचेंज, हर रेगुलेटरी, हर बॉडी लगी हुई है कि रिटेल ट्रेडर को लेके आए. ऑप्शन से अच्छा कोई तरीका नहीं है, कोई जरिया नहीं है आप रिटेल ट्रेडर को ला सको अंदर. बचा रहता है वो ऑप्शन में, तेजी भी खेलेगा, मद्दी भी खेलेगा. मद्दी खेले, क्यों नहीं खेले मद्दी? कई सारे लोग आते हैं जो फर्स्ट वेबिनार अपना लेते हैं, फर्स्ट सेमिनार लेते हैं. मद्दी नहीं करना, मद्दी ही करना. कभी भी बाजार में आप एक तरफा नहीं कमा सकते, ये रूल है बाजार का, एक ट्रेडर का ये रूल है. इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट एक अलग कहानी होती है. कभी और कोई किसी वेबिनार में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग क्या होती है. हायर रिटर्न प्रोबेबिलिटी, आपने देखा 300% का रिटर्न, वी गेन 300% रिटर्न वाया ट्रेडिंग इन एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. नो डिलीवरी, आपको कोई डिलीवरी नहीं लेनी है, कोई ऑप्शन नहीं होगा आपका. एक रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत इजी एंट्री. 5,000 रुपए साहब मेरे पास ट्रेड करना है, आइए सर बिल्कुल ट्रेड कीजिए. डिफरेंट स्ट्राइक. 6100 का महंगा है, 6200 में जाओ. 6200 महंगा है, 6300 में जाओ. बुलिश और बियरिश दोनों मार्केट में काम आएगा आपको. इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए? नाउ सम डिसएडवांटेजेस, कुछ बुराइयां भी कर लें ऑप्शन की. मीठा मीठा ज्यादा रहेगा तो डायबिटीज हो जाएगी, थोड़ा नमक डाल देते हैं इसमें. हायर इन्वेस्टमेंट फॉर सेलर, जब कोई सेल करता है तो इन्वेस्टमेंट उसको बहुत ह्यूज लगती है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सेलिंग में बहुत कम आता है. अनलिमिटेड लॉस पोटेंशियल, सेलर के लिए अनलिमिटेड है. लो लिक्विडिटी. फार मंथ ऑप्शंस जो है, मैं अगर दिसंबर में बैठा हूं, जनवरी में तो फिर भी वॉल्यूम मिल जाएगी, बट मुझे अगर चाहिए फेब में या मार्च में मुझे अगर ट्रेड करना है तो वो मुझे इतनी लिक्विडिटी नहीं मिलेगी. लो लिक्विडिटी इन मोस्ट स्टॉक ऑप्शन. स्टॉक ऑप्शन में 160 170 में से मुश्किल से 20-25 ऑप्शन में अच्छी ट्रेडिंग होती है. एक नए ट्रेडर हमेशा हिचकिचाता है कि हाँ भाई कैसे ट्रेड करूं मैं, बट आई बिलीव इस वेबिनार के बाद शायद वो आप ना हिचकिचाएं कि कैसे ट्रेड करें हम. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑप्शन ट्रेडिंग, हाउ ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्स प्लेस, कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, सिंपली आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं. कैन गिव योर फीडबैक at webinar@capitalwire.com. and now anybody who has an
क्वेश्चन, दे कैन टाइप देयर क्वेश्चन. आपके राइट हैंड पैनल में क्वेश्चन का एक सेक्शन है, वहां पे आप क्वेश्चन टाइप कीजिए, एंटर कर दीजिए. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव. So now the forum is open for your question. Just type your question and I'll be answering your questions, answers. Our next webinar would be on 28th on commodity markets. The same place you registered for this webinar, you can go and register for that particular webinar also. So I'll be more than happy, and I believe questions तो होंगे जरूर इस particular subject में. So anybody who has a question, okay. Okay, we have started receiving some questions, so let me start answering those questions. What is the Nifty 5800 call trading at 80? Okay, I have received a question that if you say Nifty 5800 का कॉल है 80 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, मतलब क्या है इसका? Very simple mean that 5800 का जो ऑप्शन है, इसका मतलब मैं कह रहा हूं मार्केट 5800 के ऊपर जाएगा, उसकी प्रीमियम आज 80 रुपीज चल रही है. इसका ये मतलब है आपको 80 रुपए पे करने पड़ेंगे. 80 इंटू 50, 4000 रुपए का आपका पेमेंट है. मार्केट बढ़ेगा तो 80, 85, 90, 95 होगा, गिरेगा तो 75, 70, 60, 65 हो जाएगा. एज सिंपल एज दिस. व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑप्शन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इनफैक्ट आई आंसर्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन माय लास्ट वेबिनार. ओपन इंटरेस्ट ऑप्शंस में या फ्यूचर में होता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी इस पर्टिकुलर सीरीज में स्क्वायर अप होने बाकी हैं और अभी ओपन है. सो दैट इज एन ओपन इंटरेस्ट ऑफ एन ऑप्शन. Okay, what are out of the money stock option? Good, great question. Any option, for example, let's say I talk about a call option. अगर अभी निफ्टी 5900 पे चल रहा है तो 5900 के ऊपर के सारे ऑप्शंस जो हैं वो आउट ऑफ द मनी है. अगर निफ्टी 5900 पे चल रहा है और उसके नीचे के ऑप्शन सारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है. सिंपली स्टेटिंग, जो शर्त अभी आप नहीं जीते, आपने 5900 का कॉल लिया है, मतलब आप चाह रहे हैं कि मार्केट 5900 के ऊपर जाए. अभी मार्केट नहीं है, इसका मतलब वो आउट ऑफ द मनी है. एक और क्वेश्चन है, डू यू प्रोवाइड फुल डिटेल क्लासेस ऑन ऑप्शन? इनफैक्ट फुल फ्लेज क्लासेस तो इट इज वेरी फार अवे, अभी इट इज स्टिल इन द पाइपलाइन. बट यस, ये वेबिनार सीरीज जो है, दिस इज समथिंग विच वी हैव ट्राइड टू इम्प्लीमेंट, एंड द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस वेबिनार इज to empower the trader. What I believe in any market, it may be India or any market, until unless our trader is educated, the market would not grow. भारत में अभी भी सिर्फ 2 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट है, 120 करोड़ की आबादी है. मैं मानता हूं कि 40 करोड़ की ऐसी आबादी है जो अफोर्ड कर सकती है एक डीमैट अकाउंट को. बट फिर भी आज स्टॉक मार्केट इतना बढ़ने के बाद, इतना चलने के बाद, आज भी कई लोग सोचते हैं मार्केट में एंटर करूं, पेपर में पढ़ते हैं निफ्टी बढ़ा घटा, बट है क्या नहीं मालूम है. मेरा उद्देश्य यही है कि जितने अच्छे से मैं आपको ज्ञान दे सकता हूं और अगर कुछ फायदा मैं आपको कर सकूं, हम लोग हमारे वेबिनार के थ्रू कुछ कर सकें, तो वी विल बी मोर देन डिलाइटेड टू सी आर ट्रेडर्स अर्निंग इन द मार्केट. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे शेयर बाजार बहुत अच्छी चीज है, मगर मजा तभी आएगा जब आप पैसा कमा के ले जाएंगे. नॉर्मली रिस्क परसेंटेज कितना रखना चाहिए व्हाइल बाइंग एन ऑप्शन? लेट्स से ट्रेडर इज रेडी टू ट्रेड विद 5000, व्हाट इज द नॉर्मल स्टॉप लॉस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नॉर्मली व्हाट शुड बी द रिस्क परसेंटेज. आपको कितने का एसएल रख के चलना चाहिए? अगर कोई 5000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो स्टॉप लॉस कितने का हो? नॉर्मली सर इसका एक वन लाइन आंसर देना, एक फिट टू ऑल आंसर देना मुश्किल है, बट मैं एक आपके पर्सपेक्टिव से बताता हूं. अगर आप 5000 का ट्रेड करते हैं, आप ये अपने आप से पूछिए, इस 5000 में से कितना खो गया तो मुझे कोई गम नहीं होगा. मैं बोलता हूं मुझे अगर 2500 खो गया इस ट्रेड में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया 2500. 50% का मेरा स्टॉप लॉस हो गया. आइडियली आप 10-20% से नीचे का स्टॉप लॉस ना रखें, क्योंकि अगर आप उसके नीचे का रख रहे हैं तो आप अगले ट्रेड के लिए पैसा बचा के नहीं रख रहे हैं. तो एक आइडियल जो ट्रेडिंग टेक्निक है वो है 10-20% का, 10% का, 20% का मैक्सिमम आप स्टॉप लॉस रखें ऑप्शन में.
अगर आप ओवर लीवरेज नहीं है, अगर आप बहुत ओवर लीवरेज हैं तो 5% से नीचे का स्टॉप लॉस ना रखें। बहुत अगर ओवर लीवरेज है, ओवर लीवरेज का मतलब 5,000 रुपए जेब में है और 5,000 के 15,000 के ऑप्शन परचेज कर लिया आपने लीवरेज के लिए लड़के ब्रोकर से, 5%, 5% का आप स्टॉप लॉस रखिए। ओके, वन मोर क्वेश्चन। I have a Nifty 5800 Jan call, let's say 800, and put Jan Nifty 6000 at 50. Is it a good strategy? बहुत अच्छा एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। दिस इज समवॉट रिलेटेड टू अ स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैंगल, जिसमें एक ट्रेडर कॉल भी बाय कर रहा है और पुट भी बाय कर रहा है। यहां पे आई गेस क्वेश्चन शायद सही फ्रेम नहीं हो पाए, क्योंकि 6,000 का अगर पुट है तो उसकी मिनिमम प्राइस होनी चाहिए आज 250 रुपए। जो पॉइंट मैं समझाना चाहता हूं वो ये है कि कई ट्रेडर्स ये करते हैं, आज बाजार चल रहा है 5800, मैं एक 5800 का या 5900 का कॉल भी परचेज कर लेता हूं और मैं एक 5700 का पुट भी परचेज कर सकता हूं। या तो बाजार बढ़ेगा या गिरेगा, दोनों में से यही होना है। गिरेगा तो मेरा पुट कमा के देगा, बढ़ेगा तो मेरा कॉल कमा के देगा। तो ऑप्शन में दोनों तरफ से इन्होंने एक पोजीशन बना ली। गुड स्ट्रैटेजी, वेरी गुड स्ट्रैटेजी। बट उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है देखने का कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट आपका 200 रुपए का हो गया। अगर मैंने 5900 का 100 रुपए पे कॉल लिया और 57 का 100 रुपए पुट लिया है, तो मेरा जब तक बाजार 200 पॉइंट नहीं बढ़े, क्योंकि मेरी दोनों कॉस्ट 100 रुपए है, दोनों की कॉस्ट मुझे पे करनी है, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। नॉर्मली ये स्ट्रैटेजी आपको काम आती है चुनाव के पहले, क्योंकि चुनाव के बाद बाजार बहुत तेज मूव करता है और किसी भी एक तरफ बहुत खतरनाक तरीके से मूव करता है। नॉर्मली जब हम अपनी क्लासेस लेते हैं तो इस स्ट्रैटेजी का नाम रखते हैं इलेक्शन स्पेशल। कई लोग बोलते हैं क्रिसमस स्पेशल को टॉफी है, दिवाली स्पेशल ये है, तो हम मेरी क्लास में इस स्ट्रैटेजी को बोलता हूँ इलेक्शन स्पेशल स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी हमेशा इलेक्शन में काम आती है और बहुत बढ़िया रूप से काम आती है। या कोई एक बहुत बड़ा किसी का कोर्ट केस होने वाला, बहुत एक ऐसी चीज होने वाली हो जिसके डिसीजन से बहुत मेजर फर्क पड़ेगा और आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये डिसीजन क्या रहेगा, तो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी बोलते हैं हम इसको। Is there any book on option which you can suggest? There are many books on option, Mr. Luthra, but you can simply go to the NCFM section of NSE. वहां पे बहुत सारी बुक्स हैं, एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटेजी की भी है, बेसिक ऑप्शन स्ट्रेटेजी की। गुड इनफ बुक, आप उसको पढ़िए, मोर देन सफिशिएंट। एंड सबसे बढ़िया तरीका शेयर बाजार को सीखने का मैं बताता हूँ, ट्रेड करके देखो, 5,000, 4,000, 3,000 का ऑप्शन बाय करके देखो। वो जो ट्रेड आपको सिखा देगा सर, बिलीव मी, किताब आपको जिंदगी में कभी नहीं सिखा सकती है। हम कभी किताब पढ़ के नहीं सीखेंगे मार्केट क्या होता है, मार्केट में लॉस खा के ही सीखे हम कि बाजार क्या होता है। वी कॉल दैट लॉस एज आर टीचिंग फीस, ट्रेनिंग फीस। बहुत लॉस किया है मैंने बाजार में, वो मेरी ट्यूशन फीस थी मार्केट सीखने की। ओके, एक और क्वेश्चन जो दिल से पूछा है इन्होंने कि सर मैंने पहले ऑप्शन में बहुत लॉस किया है, कैसे रिकवर कर सकता हूं सर? सबके दिल का दर्द यही है कि लॉस बहुत क्या है, दर्द की दवा क्या है। कोशिश करता हूं दवा लगाने की मैं। बहुत सिंपल तरीका है सर, दो चीजों को ध्यान रखिए, कभी भी आप ऑप्शन में ओवर लीवरेज ना करें। आपके जेब में 10,000 रुपए हैं, 7,000 के ऊपर का ऑप्शन एक समय पे कभी ना खरीदें, एक सबसे बड़ा तरीका। दूसरा, स्टॉप लॉस पे जरूर निकलें। ऑप्शन है, मैक्सिमम लॉस है, वो सही है, स्टॉप लॉस पे आप जरूर निकलें। तीसरा, आपने आज ट्रेड किया, कल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया आपका, आपने मान लीजिए कॉल परचेज किया, बाजार गिरने लग गया, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, आप निकल तो जाइए मगर हाथों हाथ पुट मत परचेज कीजिए। लोग बोलेंगे कि ये उल्टा करना चाहिए स्ट्रैटेजी का, नहीं, बट डोंट एंटर इनटू दी कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी एट द सेम टाइम। थोड़ा टाइम रुकिए, वॉच कीजिए मार्केट को, उसके बाद एंटर कीजिए। तो ये तीन चीजों का आप ध्यान रखिए, ओवर लीवरेज मत कीजिए, स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग से आप ब्रेक लीजिए। आई गेस आपका ये काम हो सकता है। ओके, सो okay, again for the learning of the option, you can start your learning of the option via internet पे आप गूगल करेंगे ऑप्शन, अबाउट ऑप्शन, you'll get 10,000 different websites, so आप वहां से ऑप्शन लर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। If stop loss get triggered, that can we convert our opposite direction? जो मैंने अभी जवाब दिया कि अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया कि आप फटाक से ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाए, नहीं। मेरा सजेशन है
अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते हैं या आपके टेक्निकल्स बहुत सही नहीं है, आप एक नॉर्मल ट्रेडर हैं, मत करिए आप कॉल को पुट में कन्वर्ट करना। लॉजिकली ये स्ट्रेटेजी सही लगती है, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, बट एक ट्रेडर की साइकोलॉजी पे आप जाइए। मार्केट में 3 चीजें काम करती हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजी, ये सेंटीमेंट। मेरा ये मानना है जिसका सेंटीमेंट पे कंट्रोल है उसको फंडामेंटल टेक्निकल की जरूरत ही नहीं है। सेंटीमेंट कोई किसी को नहीं सिखाया जा सकता है, सिर्फ सीखा जा सकता है। कोई नहीं सिखा सकता किसी को, आप सिर्फ सीख सकते हैं सेंटीमेंट को। तो अनटिल अनलेस यू हैव अ गुड हैंड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, आप समझते हैं कि हाँ यहाँ से बाजार पलट गया है, मूविंग एवरेज टूट गया है, स्टॉप लॉस गया है, सपोर्ट टूटा है मेरा, ट्रायंगल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ है, आप मत एंटर कीजिए ऑप्शन में, थोड़ा टाइम वेट कीजिए, उसके बाद आप ऑप्शन में एंटर कीजिए। इन्फोसिस का रिजल्ट क्या है सर? इन्फोसिस के रिजल्ट के बारे में तो शायद हम नहीं बता पाएंगे। Okay, good question. The viewer is asking to see the recorded session. Yes, you can see the recorded session very soon, maybe till the end of this week. आपको हमारी वेबिनार की वेबसाइट पे YouTube पे हमने सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, आपको बहुत जल्दी हमारे वीडियोस YouTube पे दिख जाएंगे। प्लीज बी कीप ट्रैक ऑफ आवर वेबसाइट। ऑल्सो व्हाट विल डू इज, जब हमारे सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, विल मेल इट टू एवरीबडी हु हैज अटेंडेड दिस वेबिनार। अपने सारे वीडियोस की रिकॉर्डिंग की लिंक आप सबको YouTube पे सेंड करेंगे। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थैंक यू। ओके, सो विद दिस आई बिलीव शायद वी आर एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। सो आई बिलीव ये सेशन आपको अच्छा रहा और आपने कुछ सीखा। एंड द नेक्स्ट ट्रेड यू मेक इन द ऑप्शन शुड बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी कि आप प्रॉफिट कमाएं, बिकॉज दैट इज हाउ यू कैन एंजॉय द मार्केट। मार्केट बहुत ब्यूटीफुल जगह है, अगर आप बाजार में पैसा कमाएंगे तो वो और सुंदर जगह आपको जगह दिखने लगेगी। बाजार अच्छा या बुरा नहीं होता है, डिपेंड करता है आप कैसे है। बाजार पानी की तरह है, पानी में वो ताकत है कि प्यास भी बुझाए, पानी में वो ताकत है कि आपको डुबा भी दे। तो ये आपको देखना है कि आप इस बाजार के समुद्र को कैसे लेते हैं, इस जल को आप कैसे लेते हैं और इसको आप कैसे अपनी तरफ यूज करते हैं। So with this, I'd like to end my webinar. Thank you everybody who attended this webinar, and we hope that this webinar would be useful to you. हमारा next webinar है 28th को on commodity derivative, and very soon we'll be uploading the calendar for January month. आप लोग सब वहां से track कर सकते हैं। And thanks from my side. Now you can end the webinar. अपने webinar को end कर सकते हैं। Thank you.